All right. Now we'll start off with molar volume calculations. One thing I told you is then कि molar ratio is always equal to the volume ratio. याद आ रहा है? जी। अगर आपको वॉल्यूम 100 दियो और अगर प्रोडक्ट का 1:2 हो तो अगले का वॉल्यूम डायरेक्टली आप बता सकते हो वो 200 हो जाएगा. The work of Avogadro and others led to the idea of molar volume, that a volume of gas that contains 1 mole of the gas, the molar volume is approximately the same for all gases, but its value varies with temperature and pressure. Or room temperature, you should know the conditions, which are 1 into 10 power 5 pascals, 298 Kelvin, 25 degrees Celsius temperature, and 24 dm cube volume. यहाँ से एक formula आता है that if you want to find the number of moles, you can divide the volume by 24 dm cube, or if you want to find the volume of a gas, you can multiply the moles with 24 dm cube. So these are the calculations and these are the formulas that you are going to use over here. How do we convert from dm to cm is very simple. आप multiply by 1000 कर दो. And if you want to go back to dm, you can divide by 1000. For example, what is the amount in moles of C carbon monoxide in 3.8 dm cube of carbon monoxide? Simply आप 3.8 dm cube को divide कर दो 24 से and you'll get the moles. या अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो इन 0.36 मोल्स, अब आपको मोल्स गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, तो मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो विद वॉल्यूम, you would have the volume of gas. Got it? जी। But in some cases you have to combine two or more calculation methods as well. Like first of all, आपको कहीं पे अगर mass दिया हुआ है, mass से पहले आप moles निकालोगे, moles से शायद molar ratio भी आ जाए और वहां से फिर आप शायद volume और फिर आगे concentrations वगैरह भी निकालोगे. A piece of magnesium with a mass of 1 gram is added to an excess of dilute hydrochloric acid. What volume of hydrogen gas is formed? The equation for the reaction is magnesium plus hydrochloric acid forms magnesium chloride plus hydrogen, and you are not given any information about the hydrochloric acid. Simply आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको mass given है HCl का, पहले तो mass over mr करके आप मैग्नीशियम के ये तो निकाल लो मोल्स, जी ठीक है. मोल। मैग्नीशियम के मोल्स निकला है, मोलर रेशियो आपको पता है दैट हाइड्रोजन भी 1:1 है, विच मीन्स हाइड्रोजन ऑल्सो हैज दीज मोल्स. इन मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो 24 डीएम क्यूब से तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा. क्लियर? जी। Let's look at another example as well. Ammonium sulfate reacts with sodium hydroxide solution to form sodium sulfate, water, and ammonia, as shown over here in the equation. What volume of ammonia is formed? हमने इसका volume निकालना है. When 2.16 grams of ammonium sulfate was reacted with excess sodium hydroxide solution. Now you are not given any information about the sodium hydroxide and you are not asked anything about sodium sulfate or water. You can use the mole expression to calculate the amount of ammonium sulfate. पहले आप अमोनियम सल्फेट के मोल्स तो निकालो, आपको डाटा दिया मैंने, इसका मास ओवर एमआर करो, जी। मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट. फिर देखो कि इनका आपस में 1:2 है, मल्टीप्लाई कर दो इसके मोल्स को तो आपके पास मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू 1:2. देन जो मोल्स अमोनिया के हैं मल्टीप्लाइड बाय 24 तो आपको डीएम में आंसर मिल जाएगा. अगर आप 24,000 से करोगे यू विल गेट योर आंसर इन सीएम क्यूब एज वेल. सो मोलर वो वॉल्यूम इज हमें ज्यादातर occupied. पे सीएम और डीएम वो पूछते हैं। एग्जामिनर ने यहाँ पे ना डैश के आगे लिखा होगा. ओके ओके सही है। ठीक है, अगर डैश के आगे डीएम लिखा है तो देख लेना. और अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम्म। आप देखो वो क्वेश्चन में क्या यूज करता आ रहा है, सीएम में या डीएम में चीजें यूज करता आ रहा है, तो आप भी वही फॉलो लेकिन स्टैंडर्ड डीएम यूज होता है दिए होते हैं, या वो भी ज्यादातर डीएम वैसे. ओके। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन भी देखनी पड़ेगी यार, मोल पर सीएम तो नहीं है. कॉन्सेंट्रेशन भी गौर से देखना, मोल पर डीएम ही होनी चाहिए. अगर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम है तो आपके पास वॉल्यूम भी डीएम क्यूब होना चाहिए. सही है। सो अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को भी देख लेते हैं. If you know the mass of a solute that you dissolved in a solvent and the volume of the solution formed, when it is straightforward to calculate the mass concentration. You use the expression of mass concentration gram per dm cube is equal to the mass of solute divided by the volume of solution in dm cube. अब यहाँ पे you can use some expressions और सबसे common आपने याद रखना है which is concentration is equal to moles over वॉल्यूम. इधर से निकलेगा मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, और यहीं से निकलेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स ओवर कॉन्सेंट्रेशन. गॉट इट? जी। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 को देखें. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 15.7 ग्राम पर डीएम क्यूब.
What mass of the solute is there in 750 cm cube? तो पहले mass concentration into volume, this is another formula. mass concentration में फर्क चीज है, mass concentration इसको कहते हैं, और normal concentration को हम कहते हैं molar concentration, जो मोल पर डीएम क्यूब में होती है। mass concentration किस में होगी, ग्राम पर डीएम क्यूब में। तो आप सिंपली उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास सिर्फ mass आ जाएगा। गॉट इट? ओके। तो उसके लिए क्या है, जैसे हमने ये बताया ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स ओवर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम, एंड मोल्स इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टू वॉल्यूम। इसी तरह वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर मास कॉन्सेंट्रेशन, फिर मास कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, और मास कैसे निकल आएगा, मास वुड बी इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू मास कॉन्सेंट्रेशन। गॉट इट? So these are the जी। 6 formulas: 1, 2, 3 molar concentration के, and then 4, 5, 6 आपके पास है mass concentration के। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें, a student has 50 gram of sodium chloride. What volume of 0.4 mole per dm cube solution can he make? अब आपको वैल्यू ऑफ m दी हुई है, mass दिया हुआ है। आप पहले क्या निकल सकते हो, मोल निकाल सकते हैं पहले। मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, मास ओवर 58.5 जो सोडियम क्लोराइड का एम आर है, मोल्स के आगे 0.855। अब आप मोल्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। कौन सा इक्वेशन यूज किया हमने, ये वाली। गॉट इट? जी। गुड। In this type of calculation, you can use an equation to calculate the mass of a reactant or product if you are given the volume and molar concentration of another substance. The expressions you need are the same as those you have just used, but you also need the equation for the reaction so that you can see the reacting ratio as well. इस तरह worked example 4 कर लेते हैं। Mass of 47.8 grams of magnesium carbonate reacts with 2.5 mole per dm cube hydrochloric acid. Equation ये, what volume of acid is needed? वॉल्यूम ऑफ HCl निकालना है। पहले तो आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है, इधर से इसके मोल्स निकाल लो, 0.567। अब आपको पता है मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 1:2, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 2 टाइम्स हो जाएंगे मोल्स। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स आ गए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स ओवर कॉन्सेंट्रेशन से आप वॉल्यूम निकाल लोगे, दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गॉट इट? जी। Solute is a substance that is dissolved. Solvent, a substance that dissolves a solute. Solution is a solute dissolved in a solution. Mass concentration, mass of solute divided by volume of solution. मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो ये सिंपल सी हैं वैसे इक्वेशंस, दे आर नॉट दैट टफ अनलेस यू आर ऑलरेडी अवेयर विद प्रॉपर स्टोइशियोमेट्रिकल मेथड्स। अब कुछ कॉन्सेंट्रेशन आपके पेपर में पार्ट्स पर मिलियन में भी दी जाती है। दिस इज अ न्यू यूनिट दैट यू विल स्टडी इन एट एक्सेल ए लेवल्स। Concentrations of solution can also be compared using the term parts per million ppm. It is often used for pollutants in water. Think of the word percent. परसेंट सेंट से क्या मतलब होता है, 100। इसलिए हम जब भी कहते हैं परसेंटेज तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। मतलब कि 50% का मतलब क्या होगा, 50 आउट ऑफ 100। या 50 ppm का क्या मतलब होगा, 50 पार्ट्स आउट ऑफ इतने ज्यादा पार्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन और कन्वर्जन देखें। A concentration of 1 ppm means 1 gram in 1 million gram। ठीक है, 1 ppm का क्या होता है, 1 ग्राम इन 1 मिलियन ग्राम, क्योंकि पी क्या होता है, पी वैसे पीको के लिए भी यूज करते हैं, इंटू 10 टू पावर माइनस। मिलियन का होता है सिर्फ 1/1 मिलियन। सॉरी। यस, तो 1 इन 1 मिलियन क्या होता है, 1 ppm की इक्वल। सो इफ यू वांट टू जी। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन ppm, ठीक है, क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन इन ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट। जो चीज आपने डिसॉल्व करनी है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन डिवाइडेड बाय जिसमें आप डिसॉल्व करें उसका वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, a solution contains 0.176 gram of solute dissolved in 750 gram of solvent. What is the concentration in ppm? mass of solute क्या है, 0.176 multiplied by 1 million divided by solvent का mass है 750। your answer is in ppm over here। got it? ओके। गुड। इधर एक और एग्जांपल देख लें। अब आपने मास ऑफ सोल्यूट निकालना है और आपको पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है, उसी को रीअरेंज करें इक्वेशन को। तो मास ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, इसी को रीअरेंज करना है। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट को अगर आपने इधर ही रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट उधर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, और मिलियन नीचे आ जाएगा ना डिवाइड होके। तो ये बनता है व्हेन यू रीअरेंज द इक्वेशन,
और आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट भी निकल आएगा। सो दिस इज अ न्यू इक्वेशन, याद करना, आज ही कर लेना, ठीक है। और आपका ताकि आज ये पक्का पक्का हो जाए चैप्टर। Mauna Loa is the name of a volcano in Hawaii, which is also the location of weather observatory that has recorded the levels of carbon dioxide in the atmosphere। इतने ज्यादा हम ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन एमिशन और बड़ी बड़ी वॉल्केनिक eruptions का भी जो मेजर होता है वैसे, वो किन यूनिट्स में होता है? पीपीएम में। क्योंकि अगर हम वैसे मेजर करने लगे, वो तो सोचो पूरी हवा का है, पूरे एटमॉस्फेयर में, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा मेजर करना। गॉट इट? तो इसी तरह जी। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम भी इन्वॉल्व हो जाए, पहले तो मैथ इन्वॉल्व था, अगर वॉल्यूम भी इन्वॉल्व हो जाए तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर गैस का वॉल्यूम, इसको समझो ये सोल्यूट है, और जो पूरी हवा है वो क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है। वही फॉर्मूला है, सही। कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ मैथ्स की जगह क्या आ गया? सोल्यूट, मैथ्स ऑफ सोल्यूट की जगह आ गई वॉल्यूम ऑफ गैस, जिसका आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट की जगह क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर इनटू 1 मिलियन, दैट वुड गिव यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट गैस इन पीपीएम एज वेल। गॉट इट? जी। एक्सप्लेन मी वर्कड एग्जांपल 5, मुझे खुद समझाएंगे आप ये? 5,000 cube of air found contain ozone. What is the volume of ozone in the sample of air? हाँ, तो ये हम वो concentration ppm into volume of air over million हमने rearrange वही equation किया था। solute over solvent वही सेम ही। तो 87 इंटू 5,000 ओवर 1 मिलियन, तो हमारा 0.435 DM क्यूब बनेगा। एग्जैक्टली उसी इक्वेशन को आपने रीअरेंज कर दिया, आपने वॉल्यूम ऑफ गैस बिल्कुल। निकाला था ना, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ जी। मल्टीप्लाई कर दिया आपने वॉल्यूम ऑफ एयर को, और डिवाइड कर दिया किससे? 1 मिलियन से। मिलियन को। भी इक्वेशन जी। रीअरेंज करके ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। इसी तरह ऊपर भी आपके पास, this is the first equation, and then this is the second equation that you have to take in mind, and that is the end of your topic number 1 of unit number 1। got it? जी। अब ये पूरी एग्जाम प्रैक्टिस है, मैंने बुक अपलोड की हुई है ना ग्रुप के अंदर। हाँ, आपने किया। अब मसला ये सारे सवाल करके आपने भेजने हैं, 11 के 11, ठीक है? सारे होने चाहिए, सही है। पूरे टॉपिक 1 में से हैं। आई, मैं सिर्फ इस पार्ट की पिक्चर भी ले लूंगा, सिर्फ ये पेजेस भेज दूंगा, एंड यू हैव टू सबमिट दीज टू मी बाय मंडे। कल का पूरा दिन लें और कल ही भेज दें, बेशक बहुत अच्छा है, क्योंकि सिलेबस भी ज्यादा, टाइम भी कम है, ज्यादा ज्यादा काम करना है दिन का, कल ही खत्म हो जाएगी।